Lesson class, we are talking about lipids. Lipids are called fats, then type of lipids. सबसे पहले हम लिपिड की बात करेंगे कि जो लिपिड हैं उनको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं. ये पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था. लिपिड्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड. Then if we talk about lipids, lipids are made up of fatty acid and glycerol, 3 molecule of fatty acid and 1 molecule of glycerol. So the lipids are called triglyceride. Next, as in carbohydrate, carbohydrate की बात करें, in carbohydrate the general formula is CnH2nOn. In case of lipids, this formula is CnH2nO2. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, वहां पढ़ते हैं कि जो फैट्स हैं they give more energy as compared to carbohydrate. Why? Because they have less number of oxygen molecule. ऑक्सीजन मोलिक्यूल इनमें कम है, तो इनके ऑक्सीडेशन में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, so they give more energy. तो लिपिड दे आर फैट्स. फैट्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. What are saturated fats? Saturated fat are those which are made up of saturated fatty acid. They are made up of saturated fatty acids. Saturated fatty acid are those fatty acid in which single bond is present between carbon carbon. इसलिए उनमें saturation है, उनमें और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती. So we call them saturated fatty acid. For example, palmitic acid. Palmitic acid. Palmitic acid, it is the, आपने बस इतना याद रखना है, 16 कार्बन कंपाउंड. 16 कार्बन कंपाउंड, तो इसका फॉर्मूला हो गया C16H32O2. और इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH214 COOH. This is palmitic acid. And next is one more, स्टीरिक एसिड. स्टीरिक एसिड को हम लिख सकते हैं, अब आपने स्टीरिक एसिड का याद करना है कि इट इज हैविंग 18 कार्बन C18H36O2. इसको जैसे यहाँ लिखा है, हम क्या लिखेंगे? इट इज कॉल्ड CH3 CH216 COOH. तो आपने क्या करा, जो फैट है इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2. They may be saturated or unsaturated. Saturated fat are those which are made up of saturated fatty acid. Saturated fatty acid क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कंप्लीट सैचुरेशन हो चुकी है, उसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा. पाल्मिटिक एसिड, इट इज 16 कार्बन कंपाउंड. फॉर्मूला हो गया, अब आप इसमें 16 रख दें, C16H32O2. और इसको लिख सकते हैं CH3 CH214 COOH. स्टीरिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड, फॉर्मूला हो गया C18H36O2. इसको लिख सकते हैं CH3 CH216 COOH. Then next is, this is about the saturated fatty acid, unsaturated fatty acid. What are unsaturated fatty acid? Unsaturated fatty acid are those which are having the 2 bond or 3 bond or single double bond or 2 double bond or 3 double bond or 4 double bond between their carbon atom. And what is the source of these unsaturated fatty acids? Source of these unsaturated fatty acid are plant oils. अब प्लांट में कौन से ऑयल्स हैं? कोई आप प्लांट ऑयल खाते हैं? याद कीजिए, अपने घर में किचन में जाइए और देखिए कि आपका खाना किस में पकता है.
क्या रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हैं। मोस्टली जो रिफाइंड ऑयल है क्रूड ऑयल से बनते हैं और क्रूड ऑयल प्लांट से निकलता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सफोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये सभी जो ऑयल है दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिनको हम बोलेंगे दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड what are essential fatty acid? Essential fatty acid are those which we have to take in our diet. प्लांट इनको बनाते हैं, एनिमल इनको नहीं बना सकते। एंड these are very essential. These essential fatty acid are linolenic, and third is arachidonic. These are the three essential fatty acids. This question is very important from the NEET point of view. Linolenic, and arachidonic. These are unsaturated fatty acid. What is the meaning of unsaturated fatty acid? That means there are present double bond between their carbon atom. फिर एक और बात करते हैं, that is not the essential fatty acid, oleic acid. ओलिक एसिड भी क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओलिक एसिड इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर ओलिक एसिड की बात करें, ओलिक एसिड में कार्बन 18 है। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हमने कहा ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला होना चाहिए CnH2nO2। अब ये सैचुरेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n -2xO2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, अगर उसमें सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 हाइड्रोजन कम होंगी। अगर उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है 4 हाइड्रोजन कम होंगी। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 6 हाइड्रोजन कम होंगी। ओलिक एसिड इसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है तो C18। H क्या आना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग 36 आना चाहिए, पर 2 हाइड्रोजन निकल चुकी हैं, 34O2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओलिक एसिड। फिर हम बात करते हैं लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में डबल 2 बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड में एक और निकल जाएगा C18, देन H32O2। इसके बाद है लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड में फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा C18, H30O2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिनोलेनिक एसिड। और एक लास्ट हमारे पास रह गया है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अरेकिडोनिक एसिड में टोटल कार्बन होते हैं 20। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। C20, H32O2। इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइग्लिसराइड में हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल फैटी एसिड। व्हाट आर द एसेंशियल फैटी एसिड which cannot be synthesized in the animals? We have to take them from outside. लिनोलेनिक, अरेकिडोनिक एसिड। फिर एक हम और कर रहे हैं ओलिक एसिड। ये अनसैचुरेटेड है पर एसेंशियल नहीं है। ये 18 कार्बन कंपाउंड है तो इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं C18H34O2। लिनोलिक एसिड C18H32, फिर एक और हाइड्रोजन निकल गए हैं 2, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है। लिनोलिक
फिर 2 हाइड्रोजन और निकल गए हैं, 3 डबल बॉन्ड है, रेकेडोनिक 4 डबल बॉन्ड है क्योंकि 8 हाइड्रोजन कम है। तो ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड हैं। अगर हम प्लांट ऑयल नहीं लेते तो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड बॉडी में किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकते। एंड दीज एसेंशियल फैटी एसिड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो अब हम करेंगे टाइप ऑफ फैट्स, टाइप ऑफ फैट और ट्राइग्लिसराइड देयर टाइप्स। टाइप ऑफ फैट्स, ट्राइग्लिसराइड को हम फैट्स लिख सकते हैं। फैट्स की टाइप सिंपल फैट, कंपाउंड फैट एंड ड्राइड फैट। सिंपल फैट, कंपाउंड फैट एंड ड्राइड फैट। सिंपल फैट में आ जाएंगे फैट, देन वैक्स, देन सुबेरिन एंड लास्ट इज क्यूटीन। ये अपने नाम याद करने हैं। सिंपल फैट में फैट, वैक्स, सुबेरिन एंड क्यूटीन। कंपाउंड फैट में आ जाएंगे हमारे जो फैट किसी ना किसी के साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन। यहाँ आपने बेटा ध्यान रखनी है बात, जो लास्ट में होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। यहाँ लिपिड का अमाउंट ज्यादा है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, आपने पढ़ा है, बायोमेम्ब्रेन बना रहा है, LIPID। लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है और लिपिड प्रोटीन के साथ कंजुगेट हो गए हैं। ड्राइव लिपिड, ड्राइव लिपिड में आएंगे स्टीरोल एंड टर्पिनॉइड, स्टीरोल एंड टर्पिनॉइड्स, ये हमारे ड्राइव लिपिड है। हम 1 बाय 1 एक एक को करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल फैट करेंगे। फैट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल। As you know, 1 molecule of fat is formed of 3 molecule of fatty acid and 1 molecule of glycerol। अब आपको पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला याद है, तो हम पाल्मिटिक एसिड से फैट बनाते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल लिख रहे हैं, ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH। This is called ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल। अब हम लिखते हैं 3 मोलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन सा ले रहे हैं यहाँ, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में क्या फॉर्मूला लिखा था, CH3 CH214 COOH। सेकेंड मोलिक्यूल CH3 CH214 COOH। ये C भी कैपिटल रखना है, O भी कैपिटल रखना है क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर थर्ड मॉलिक्यूल फिर लो, CH3 CH214 COOH। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड। अब यहां से देखो बेटा ये रिमूव होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर इज द कंपाउंड
which is formed between acid and alcohol. This is palmitic acid. एसिड और अल्कोहल के बीच में जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज कॉल्ड एस्टर, एंड हियर इज रिमूवल ऑफ दिस इज HHO, H2O, 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 3 वाटर मॉलिक्यूल. तो अब ये फैट बन गया है CH2, CH, CH2, ये फैट बन गया है. इस फैट को हम क्या बोलेंगे? दिस फैट इज कॉल्ड ट्राइपाल्मिटीन. अब आप यहाँ देखिए क्या बन गया है, ट्राइग्लिसराइड हैविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल. तो यहाँ एस्टरिफिकेशन हुई एंड देयर इज रिमूवल ऑफ 3 वाटर molecule, and this is called tripalmitin. This is tripalmitin. It is the example of pure fat. What is the meaning of pure fat? Pure fat क्या है? जो कि सेम टाइप के फैटी एसिड से बने. अब हम चाहते हैं कि हम इसमें बना दें, हम इसमें एक पाल्मिटिक एसिड ले लें, एक ले लें हम इसमें स्टीरिक एसिड. यहाँ केवल हमने 16 करना है. तो ये हमारा स्टीरिक एसिड बन गया, ये हमारा पाल्मिटिक एसिड है, ये हमारा स्टीरिक एसिड है. यहाँ क्या कर देंगे हम 16, हमने स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला लगा दिया. तो ये हमारा ट्राइपाल्मिटिन की जगह क्या बन गया? ये हमारा बन गया मोनोस्टीरीन डाइपाल्मिटिन. मोनोस्टीरीन डाइपाल्मिटिन. ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये मिक्स्ड फैट का एग्जाम्पल है. अगर आप कोकोनट ऑयल की बात करती हैं तो जो प्योर कोकोनट ऑयल है हल्का सा मेल्टेड भी होता है और कुछ जमा हुआ भी होता है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. देन दिस इज अबाउट द फैट. फिर फैट का फंक्शन क्या है यहाँ? फैट it provide insulation, mainly it preserve the food material and release the food material during starvation. तो वो फंक्शन हम सारे बाद में करेंगे. दिस इज सिंपल फैट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फैट इन विच दीज आर. अगर यहाँ बात कर रहे हैं ये सब क्या है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैट. ऐसे ही आप अनसैचुरेटेड फैट से बना सकते हैं. अनसैचुरेटेड फैट में यहाँ लिनोलिक एसिड ले लें, यहाँ भी लिनोलिक एसिड ले लें, यहाँ लिनोलिक एसिड ले लें, उससे जो बनेगा दैट इज ट्राइलिनोलीन. वो अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल हो जाएगा. जो आप इसमें ले रहे हैं वनस्पति ऑयल में ले रहे हैं. अब वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने की बात करते हैं. वनस्पति पता है आपको, कभी हिंदी में पढ़ा हो अपने प्लांट को वनस्पति बोलती हैं. तो ये प्रचलित है नाम, प्लांट ऑयल की जगह वनस्पति ऑयल यूज करना. यहाँ मैं ये लिख रही हूँ, चलो प्लांट ऑयल लिख देते हैं. प्लांट ऑयल, वैसे वनस्पति ऑयल लिखते हैं. अगर हम इसके ऊपर से हाइड्रोजन पास करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, it get changed into वनस्पति घी. वनस्पति घी में चेंज हो जाएगा. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड. बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड हैं जो कि खत्म हो जाएंगे. सेकेंड हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है डालडा घी. सेकेंड हम बात कर रहे हैं वैक्स. कौन कौन से वैक्स देखे हैं बेटा आपने बी वैक्स का नाम सुना है? बी वैक्स, बी, यहाँ मैं हनी बी की बात कर रही हूँ. बी वैक्स इज द secretion of
एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ बी। और बी वैक्स को यूज करती है हनी बी अपना कॉम्ब बनाने के लिए। और उस बी वैक्स को जब ह्यूमन बीइंग हनी कॉम्ब से हनी एक्सट्रैक्ट करता है तो वैक्स भी एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि वैक्स कॉस्टली है, इसको कॉस्मेटिक्स बनाने में भी यूज करते हैं। अगर आपने कभी अपना शूज रिपेयर करवाया हो बचपन में, अब तो डिस्पोजेबल ही होते हैं, या अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने जरूर कभी रिपेयर करवाया होगा। तो जो कोबलर है, मोची है, उसके पास बी वैक्स मिलता है, आप वहाँ देख सकते हैं बी वैक्स को। तो जो बी वैक्स है इसमें अल्कोहल चेंज हो जाती है, इट इज एस्टर। एस्टर है क्योंकि हम फैट की बात कर रहे हैं, इसमें अल्कोहल आ जाएगी। अल्कोहल इज मेरिसाइल अल्कोहल। अल्कोहल इज मेरिसाइल अल्कोहल। दूसरा वैक्स, आप सोचो क्या आपका कोई ऑर्गन है जहां से वैक्स सिक्रीट होता है? सोचो। जब मैं आपको कह रही हूं सोचो तो आपका वो ऑर्गन वर्किंग में है। अब और सोचो, दैट इज ईयर। कैरुमन, क्या आप अपना कान भी साफ करते हैं? ईयर बड आती हैं, अगर साफ करना है साफ करके देखें। पर मैच स्टिक को मत लें क्योंकि ईयर ड्रम फट सकता है। तो कैरुमन इज कॉल्ड ईयर वैक्स। इसका फंक्शन है, इसमें लाइसोजाइम होते हैं जो फैगोसिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईयर में जा रहा है उसको ट्रैप कर लेगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ ईयर वैक्स। और किसी की वैक्स की बात करें, अब हम बात करते हैं फर वाले एनिमल जिनमें फर होता है। आपने बियर देखा है, बियर में हेयर होते हैं, फर है, वो शिप में फर है। फिर जो बियर का फर है, आपने पोलर बियर भी सुना होगा, देखा भी होगा, बिल्कुल वाइट है, आपने फोटो में देखा होगा। उसके जो हेयर्स हैं, जो उसका फर है, उस पे एक वैक्स होता है लिनोलिन। कौन से ग्लैंड से आता है बेटा? कुटेनियस ग्लैंड। कुटेनियस ग्लैंड से सिक्रीट करता है। तो इनके फर में एक पर्टिकुलर शाइनिंग होती है, वो शाइनिंग वैक्स के कारण ही होती है, दैट इज लिनोलिन वैक्स। और जो हमारा ईयर वैक्स है वो भी कुटेनियस ग्लैंड से आता है। कुटेनियस बोलते हैं स्किन में जो ग्लैंड है वो वैक्स को सिक्रीट कर रहे हैं, दैट इज ईयर वैक्स। ईयर वैक्स के बाद हम बात करते हैं एक और वैक्स की। सोचो आप कौन सा वैक्स? कभी आपके घर में यूज होता है, कभी आपने उसको यूज किया होगा दिवाली के दिन। सोच सकते हैं कौन सा वैक्स? दैट इज कॉल्ड पैराफिन वैक्स। दैट इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से निकलता है और किस में यूज होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल बनाने में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड पैराफिन वैक्स। एक और वैक्स की बात करते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल, दैट इज डी वैक्स। डी वैक्स मिलता है पैथोजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी वर्ड शायद आपने सुना नहीं होगा। लेप्रोसी बोलते हैं कोड, स्किन डिजीज है, वहां मिलता है ये डी वैक्स। और जो इन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी है, पैथोजन बोलते हैं डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिसिटी उनकी पावर डिजीज कोज करने की, दैट इज एसोसिएटेड विद दिस डी वैक्स। डी वैक्स के साथ ही एसोसिएटेड है वो पावर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल फैक्ट, दैट इज सुबेरिन। सुबेरिन ये प्लांट में मिलता है। प्लांट में जब आप रूट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि रूट में पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, एंडोडर्मिस, उनके बीच में स्ट्रिप्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सुबेरिन। These are cell of endodermis.
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुबेरिन? जहां भी वैक्स मिल गया उसका एक फंक्शन होगा वाटर प्रूफ, वाटर को वो आने नहीं देगा। फिर अगली बात हम करते हैं क्यूटिन। प्लांट में अगर बात करें, एक लीफ है वो फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, उसके ऊपर वाली सरफेस, लीफ की फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, स्टेम की भी एपिडर्मिस होती है, रूट की भी एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर मिलेगी, दैट इज कॉल्ड क्यूटिन। फंक्शन क्या है क्यूटिन का? ताकि पानी अंदर ना जाए, अगर पानी अंदर जाएगा तो लीफ गल जाएगा। लीफ के क्यूटिकल के ऊपर, और क्यूटिकल भी बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर मिलती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिन। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल फैक्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द compound fat which are conjugated fat also.